Good afternoon, my dear class. We were completed with our skeletal system. Now we are moving to discuss about our muscle system. We all know that muscles are numerous in our bodies. There are numerous muscles in our body. We already discussed that there are more than 300 muscles that are present in our body. If we smile, okay, there are around 26 muscles that act together to give us a smile. And when I am speaking, around 21 muscles are working together so that I can able to speak. So there are numerous muscles present in our body, and we are going to discuss about them in detail. What are the different muscles present in our body? What are their specific functions? How they perform? What are the different types? What are the different anatomical positions of these muscles? So let's start with our muscles. Okay. In our tissue chapter, we already discussed that all the muscles are made up of our muscle tissues. So muscle tissues are basically special type of cells. We can say the elongated cells which consist of our muscle fibers. यानी कि जो elongated cells है हमारे muscles के अंदर हम उनको क्या बोलते हैं हमारे muscle fibers या फिर हमारे myocytes which generates ATP. They help in the contraction and relaxation. Okay, so there are different muscles present in our body. In the tissue, when we're discussing about the muscular tissues, we discussed three different types of tissues that are present in our body. तीन तरह की अलग अलग मसल्स थी जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी. नंबर वन इज आवर स्केलेटल मसल, number two is our cardiac muscle, and number three is our smooth muscles. We know that skeletal muscles are those muscles which are attached with our skeletal system, यानी कि जो हमारे skeletal muscle के साथ attached थी. हमने डिस्कस करा था अपने skeletal system में that our bones are attached with our muscle with the help of specific connective tissues which we call them as our tendons. तो tendons की मदद से क्या है हमारी मसल्स और हमारी जो बोन्स अटैच है. ओके, और कौन सी मसल अटैच है वो है हमारी स्केलेटल मसल या हम कहें हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू. सेकंड वी हैव आवर कार्डिक मसल. नाम से ही पता लग रहा है यानी कि वोवली मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट, यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर मसल्स प्रेजेंट है क्योंकि वो कौन सी हमारी कार्डिक मसल्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज आवर स्मूथ मसल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में विसरल मसल्स है. ओके, जो हमारे होलो सरफेस है जैसे कि हमारी स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन, उसके अराउंड जो मसल्स प्रेजेंट है वो कौन सी होती है हमारी smooth muscles. So just have a quick recap about our all these three types of muscles. There are three types of muscles that are present in our body. Number one is our skeletal muscle. Number two is our cardiac muscle, and the number three is our smooth muscles, which we also call them our visceral muscles. And these three muscles are consisted of specific type of cells which we call them our muscle cells or also call them as our muscle fibers and myocytes. So have a quick recap about all these three types of muscles. Firstly, we are going to discuss about our skeletal muscles. We know the locations that these muscles are basically present in our skeletal system, यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है which are interconnected with our bones. जो हमारी 206 बोन्स है उसके अराउंड है ये 330 अराउंड स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है. इनका जो मेजर फंक्शन है, द मेजर फंक्शन ऑफ आवर skeletal muscles in the movement, okay, in the generation of heat and posture. यानी कि ये क्या करती हैं, हमें मूवमेंट में मदद करती हैं, हमारी पूरी बॉडी को पोस्चर प्रोवाइड करती है. ओके, अभी हम इनके फंक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखें, आपकी रिवीजन आपको पता भी है
कि कैसे ये काम करती है। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस भी करी थी पहले, दैट दीज आर स्टाइलेटेड, यानी कि इनके अंदर क्या स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, यानी कि इनके बीच में गैप्स हैं, यानी कि कुछ जगह पे है जो इनके क्या कहते हैं स्ट्रेट्स बनते हैं, कुछ जगह पे नहीं। यानी कि ये देखिए, ये फिगर के अंदर आपको लाइंस दिख रही है, दीज आर देयर स्टाइलेशंस। और ये स्टाइलेशंस किस वजह से होती हैं, हम अपने मस्कुलर टिश्यू के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल का, उसमें डिस्कस करेंगे। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारा एक मसल फाइबर है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस न्यूक्लियस एंड ऑल दिस न्यूक्लियस आर इसेंट्रिक, यानी कि एक दूसरे के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके जो फाइबर्स है, दैट मींस फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो फाइबर्स की वजह से स्टाइगेशन बन रही है, दिस स्टाइगेशन इज पैरेलल, or we can call them, it consists of striated fibers, and these muscles are voluntary in nature. We have discussed that our only one type of muscle is voluntary in nature, which is our skeletal muscle, while the other two, our cardiac muscle and smooth muscles, are involuntary in nature. Voluntary means यानी कि जब हम चाहेंगे तब वो अपना जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट परफॉर्म एनी function or any kind of movement or anything else. Second, we have our cardiac muscles. Okay. Secondly, we have our cardiac muscles. Okay. Cardiac muscles, as we all know, these are present in our heart, यानी कि जो हमारी हार्ट की वॉल है उसके अराउंड क्या है, हमारी ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट। इनका मेजर फंक्शन वही है दैट दे हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड कॉन्टिन्यूसली। हमारा हार्ट जो है पंपिंग करता है, और जो हार्ट की पंपिंग है, ओके, इसकी मदद से हो गया स्पेसिफिकली हमारे मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो हमारे कार्डियक मसल्स है उनकी मदद से हो गई है। और अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दीज आर दी ब्रांच, ये देखिए ये हमारी ब्रांच है ना। If we look at this figure, these muscles are branched. These are not striated. These are branched muscles, यानी कि ऐसे जा रही है, फिर आपस में जुड़ गई हैं, फिर अलग हो गई हैं। So these are our branched muscles. These contain striated, as we also discussed, कि इनकी जो fibers है striated है, और इनके अंदर क्या एक ही central nucleus present होता है, and these are involuntary in nature, यानी कि ये हमारे कहने पे काम नहीं करेंगी, दे विल ऑटोमेटिकली वर्क, दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी कि जो उनकी फंक्शन है इट इज आउट ऑफ आवर एबिलिटी। अगर हम चाहें भी तब भी हम अपने हार्ट को पंप करने से नहीं रोक सकते। द थर्ड टाइप ऑफ आवर मसल्स आर आवर स्मूथ मसल्स, व्हिच वी आल्सो कॉल देम आवर visceral muscles. These kind of muscles are present in our GI tract, our uterus, eye, blood vessels. Blood vessels हमारा जितना भी GI ट्रैक्ट है, चाहे वो हमारा स्टमक है, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं इंटेस्टाइन है, गाल ब्लेडर है, यूट्रस है, यूरिनरी ब्लेडर है, हमारी ब्लड वेसल्स है, इनके अराउंड कौन सी हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है, हमारी स्मूथ मसल्स। दीज आर आल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये वाली जो मसल्स है, दीज मसल्स आर आल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर। और ये क्या है, नॉन स्टाइगेटेड होती है, यानी कि इनके अराउंड क्या है, स्टाइगेशन प्रेजेंट नहीं होती। तो कौन सी मसल्स हैं जिनके अराउंड स्टाइगेशन नहीं होती, वो होती है हमारी स्मूथ muscles. These play an important role in blood pumping, okay, urine excretion, यानी कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड है तो यूरिन की एक्सक्रीशन में मदद करेंगी, ओके। और जो हमारे जीआईटी के अराउंड प्रेजेंट है, दे विल हेल्प इन पेरिस्टाल्सिस, यानी कि फूड की मूवमेंट में जो है ये मदद करेगी, यानी कि ये जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी उस तरीके से ये काम करेंगी। सो this is all about our three different types of muscles. इनको हमने अपने मस्कुलर सिस्टम में भी डिस्कस करा था, लेकिन इसमें हमने जो बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करा कि क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, ओके। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, फर्स्ट इज आवर स्केलेटल मसल, सेकंड इज आवर कार्डियक मसल, एंड थर्ड वन इज आवर smooth muscles, or we can call them our visceral muscles. All these muscles play an important role in our body. So when these muscles
work together, the different muscles, when these work together, this is known as our muscle. Okay, and the system which is related to our muscle is our muscular system. So let's have a further discussion about our muscular system. We all know that our muscular tissues perform different type of characteristics, excitability, ओके, आगे है हमारी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन और इलास्टिसिटी. दिस इज द फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ आवर मस्कुलर टिश्यू. सबसे पहली है वो क्या है हमारी एक्साइटेबिलिटी, विच मीन्स जो हमारी मसल्स है दे रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. यानी कि जब भी कोई स्टिमुलाई आएगा हमारे मसल्स के अराउंड, आवर मसल्स हैज द कैपेबिलिटी टू रिसीव दिस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड. यानी कोई भी जब हमारे मसल्स के अराउंड कोई भी एक स्टिमुलस आएगा, आवर मसल्स बिकम एक्साइटेड. यानी कि हमारी मसल्स जो है एकदम हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि जो अपनी एक्टिविटी को है वो तेज कर देंगी. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारी एक्साइटेबिलिटी, विच मीन्स द फिनोमिना बाय विच अ मसल्स गेट एक्साइटेड, ओके, व्हेन इट गेट अ स्टिमुलस. यानी कि कोई भी एक स्टिमुलस जब हमारी मसल को मिलेगा तो क्या है वो उसको रिसीव करने के लिए क्या एक्साइटेड स्टेट पे जाएगी. अगर हम हमारे स्केलेटल मसल्स की बात करें, दैट इन आवर स्केलेटल मसल्स द न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी अ स्टिमुलस कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर. यानी कि कोई भी एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, यानी कि जो क्या हमें किसी न्यूरॉन से मिलेगा. Okay. अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें, दैट इन आवर कार्डिक मसल्स द स्टिमुलस कैन बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, अ हार्मोन और अ स्ट्रेच. यानी कि कोई भी एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई भी एक हार्मोन हो सकता है, या कोई भी एक स्ट्रेच हो सकता है. लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर भी वही है कि हमारा कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, स्ट्रेच या चेंज इन पीएच, ओके, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो बेसिकली होता क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जनरेट होती है हमारे मसल के अराउंड. ओके, यानी कि जब भी कोई स्टिमुलाई आया, ओके, तो उस स्टिमुलाई के अराउंड यानी कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अगर हमारे मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, दैट मींस आवर मसल रिसीव्स अ स्टिमुलाई, सो इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली टू इट. यानी कि कोई भी जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर मसल पे आया तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर दिया, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी to respond to certain stimuli by producing electrical signals. यानी कि जो रिस्पॉन्स है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में जो है जनरेट होगा. ओके, और उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम बोलते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल. और ये जो है आगे हमारे मसल्स के पास जो है सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा. ओके, तो जो है हमारी बॉडी क्या है, जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स हमारे मसल के साथ अट्रैक्ट करेगा या मसल के साथ अटैक करेगा, तो इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, एंड दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर नोन एज एक्शन पोटेंशियल. अब जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हो गए, आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, ओके, द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज शोन बाय आवर मसल इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी. यानी कि जो हमारे मसल्स है दे विल पुल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अपने आप को जो है अंदर की तरफ पुल करेंगे, विच मीन्स दैट आवर मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. यानी कि अगर उनका नॉर्मल साइज इतना था तो अब उनका नॉर्मल साइज कम हो जाएगा, विच मीन्स दे जनरेट्स अ स्पेसिफिक फोर्स. उनके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी एक एडिक्वेट स्टिमुलस की, जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन हमारे मसल्स के ऊपर आके एक्ट करेगा. यानी कि द एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सफुली, यानी कि अपने आप को जो है छोटा करने की टेंडेंसी. ओके, एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज द एक्सटेंसिबिलिटी. यानी कि जो है वो अपने आप को एक्सटेंड कर लेगा. ओके, व्हिच मींस दैट मसल्स अलो देमसेल्फ टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली
इवन इफ इट इज ऑलरेडी स्ट्रेच, यानी कि स्ट्रेच होने के बाद भी क्या है, अपने आप को एक्सटेंडेडली स्ट्रेच कर देना, यानी कि अपने जो उसके साइज को इंक्रीज कर देना, यानी कि जो फाइबर्स हैं हमारे मसल्स के अंदर वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेंगे या अपने आप को एक्सटेंड कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो अपने आप के अपने साइज को कम कर लेंगे, और थर्ड अपने आप को जो एक्सटेंसिबिलिटी वो अपने काम को बढ़ा लेंगे। तो यानी कि एक नर्व इंपल्स आया कोई भी, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद द प्रोसेस ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, हमारे मसल्स ने क्या है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करे। उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेशन की मदद से क्या हुआ, जो हमारे मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, या तो बढ़ेगी या कम होगी। एंड द फोर्थ which is the major function of our मसल इज द इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं दीज मसल्स कैन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और वो क्या है एक्सटेंड कर रही हैं, यानी कि अपना साइज कम कर रही है और अपना साइज बढ़ा रही है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स चला गया, यानी कि एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया, देन दीज मसल्स विल रिकॉइल टू देयर ओरिजिनल लेंथ, अपनी जो है ये ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उनकी इलास्टिसिटी। दिस इज नोन एज द इलास्टिसिटी। सो देयर आर फोर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर एनी काइंड ऑफ मसल, चाहे वो हमारी स्मूथ मसल है, चाहे वो हमारी कार्डिक मसल है, चाहे वो हमारी स्केलेटल मसल है, तो उनके मेन फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर वन इज देयर एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मींस दैट दे विल रिसीव अ स्टिमुलस एंड रिस्पोंड अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि कोई भी जो है उनके ऊपर स्टिमुलस आ सकता है और वो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी उसको बोलते हैं हम उनकी एक्साइटेबिलिटी। और एक्साइटेबिलिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगे मसल्स के अराउंड, या फिर हम बोले दैट मसल्स विल जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हम क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज आवर एक्शन पोटेंशियल। ओके, एक्साइटेबिलिटी आने के बाद क्या होगा, जो हमारा मसल्स है इट विल परफॉर्म एदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, या तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर अपने आप को एक्सटेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपना साइज छोटा करेगा, एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि अपना साइज बड़ा करेगा। और फिर फोर्थ उनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो क्या है, इलास्टिसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस खत्म हो गए, एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल रेंज पे आ गया, तो वो जो हमारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था या एक्सटेंड किया था वो क्या अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, दैट मींस दे विल रिज्यूम देयर ओरिजिनल लेंथ एंड दिस इज नोन एज देयर इलास्टिसिटी। So now let's discuss about the basic function of our muscles tissue. तीन तरह के हमारे मसल हैं, हमारे स्केलेटल मसल, हमारे स्मूथ मसल एंड आवर कार्डिक मसल। तो इन तीनों मसल्स की अगर हम कंबाइन बात करें, दैट दे विल हेल्प इन द different physiological activity of our body. Firstly, they help in the movement, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं they help in the movement। कौन से मसल्स जो हमारे मूवमेंट में मदद करें, these are our skeletal muscles, यानी कि skeletal muscles attaches with our skeletal system with our bones and help in the movement, यानी कि जो हमारे joints के साथ अटैच होते हैं they will help in the movement। Second, locomotion is just same as our movement, okay, and the third in maintaining the posture। Similarly, our skeletal muscle help in the maintaining postures because they are attached with our bones and bones are responsible for maintaining postures, and these muscles and bones when joined together they help in maintaining the proper posture। ओके, यानी कि मूवमेंट में और पोस्चर में, लोकोमोशन में कौन से जो हमारे स्केलेटल मसल जो है वो मदद करते हैं। तो मेजर फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल मसल इज मूवमेंट, लोकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। सेकंड, पोस्चर अगर हम बात करते हैं तो हमें स्टैंडिंग खड़े होने में या झुकने में, ठीक है ना, अपनी मसल को या अपनी नेक को रोटेट करने में कौन से हमारे मसल्स और स्केलेटल मिलके काम करते हैं। फोर्थ मेजर फंक्शन इज द मेंटेनिंग या प्रोड्यूसिंग हीट, यानी कि
जनरेटिंग हीट करना, ओके, थर्मोजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी थर्मोजेनेसिस, इट इज परफॉर्म्ड बाय आवर मसल सेल। हमने अभी डिस्कस करा कि जो हमारी मसल्स है, दे हैज द कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। whenever our muscle contracts they will produce heat, so that's why our muscles are thermogenic in nature। यानी कि जो हमारी skeletal muscles है, हमने डिस्कस किया था that our skeletal muscles are involuntary in nature, यानी कि these are voluntary in nature, these our skeletal muscles are voluntary in nature, यानी कि जब हम चाहेंगे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करा पाएंगे और जब चाहेंगे हम उनको एक्सटेंस या इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करा पाएंगे। तो जो हमारे स्केलेटल मसल जब हम कॉन्ट्रैक्शन कराते तो हीट प्रोड्यूस होती है। फोर्थ इन दी फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारे मसल्स टिश्यू है दे विल हेल्प इन दी फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं स्माइल करता हूँ या मैं सैड हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन गेट चेंज, एंड द चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन अकर ड्यू टू द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय मसल्स, यानी कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो, यानी कि जो इलास्टिसिटी है उसकी मदद से जो है मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली मेरे कौन से स्मूथ मसल्स, सॉरी मेरे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, मेरी फेशियल मसल में मदद करते हैं। देन इन दी पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की बात आई तो हमारे जो है कार्डियक मसल्स जो है दीज आर हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग ऑफ आवर प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे हार्ट के अराउंड जो मसल्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हिच हेल्प इन द पंपिंग ऑफ आवर ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी उसकी मदद से क्या है, हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। देन another type of, or we can say the one of the most important function of our muscles tissue is the peristalsis, and it is majorly performed by our smooth muscles, यानी कि जो स्मूथ मसल्स हैं these are present in our GIT tract, यानी कि ये जो है हमारे फूड की मूवमेंट में मदद करेंगे, एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड इज नोन एज आवर पेरिस्टेसिस, यानी कि जो हमारे स्टमक के अराउंड स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्पिंचर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ आवर स्मूथ मसल्स, ओके, so they will temporarily store our food, ओके, तो पेरिस्टेलिस में मदद करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारी यूरिन की पेरिस्टेलिस में कौन से मसल्स मदद करते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल्स है दे विल स्टोर यूरिन, ओके, व्हेन दे विल contract from upper side and relax from lower side, our urine will excreted out from our body. So these 7 are the major function of our muscular tissue. They will help in movement, locomotion, maintaining postures, producing heat, and defining our facial expression. Okay, help in the pumping of blood and peristalsis. This is all about our basic introduction to muscles, our muscular system. That our muscular system comprises of our 3 types of muscles: our skeletal muscles, our smooth muscles, and our कार्डियक मसल्स। उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने डिस्कस कर लिया। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल कंटिन्यू विद द structure of our smooth muscles, sorry, skeletal muscles. We will start with our very important organ of our muscular system, which is our skeletal muscles. We all know that our skeletal muscle is composed of our skeletal muscle tissue, and it contains different type of connective tissues। यानी जो हमारी skeletal muscles हैं ये हमारी connective tissues के साथ अटैच होती हैं, और उनके अराउंड भी जो है अलग अलग टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती है। एक तो टेंडन्स है और दूसरी भी है, वो जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स।